Hello students. So in this video I will discuss the types of the redox reaction and the important points related to the disproportionation reactions. So the first type of the redox titration is known as the combination reaction. और इस combination reaction में बेटा simple होता है, जैसे हम a plus b से convert करते हैं c में, उसी तरीके से यहाँ पे a और b मिलके बनाएंगे हमारा c प्रोडक्ट. तो यहाँ पे अब ये रिडॉक्स हमें सिर्फ यही देखना होता है कि इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट. सी ओवर here carbon is its elemental state, so its oxidation number state will be 0. Here also oxygen is its in elemental state, oxidation number is 0, whereas in CO2 carbon is present in +4 oxidation state, while for oxygen it is -2. Similarly, if you see iron and sulfur, they are in 0 oxidation state, while in FeS it is in +2, whereas sulfur it is in -2 oxidation state. Means over here from 0 to +4, this means oxidation is taking place, whereas from 0 to -2 reduction is taking place, so it is a redox reaction. Similarly over here for magnesium and N2, it's for magnesium nitride. Here also it is in 0 elemental oxidation state. Here also magnesium is in 0 oxidation state, nitrogen is in 0 oxidation state. But if you calculate the oxidation state in the compound of magnesium nitrate, it comes out to be +2 in case of magnesium, and for nitrogen it comes out to be -3. Again 0 to +2 oxidation, 0 to -3 reduction. Same way over here 0, 0, +2, -2. One thing you have to remember for the combination reactions, all combination reactions involving oxygen are redox reaction. They are by default are the redox reactions. As for the methane on reaction with O2 forms carbon dioxide and water. If you see the change in oxidation number for carbon, it is -4 over here, while in CO2 it is in the +4 oxidation state. So -4 to +4 oxidation is taking place, whereas for oxygen if you see it is in the 0 oxidation state, and over here it is -2, so 0 to -2 reduction. Similarly over here 0, 0, +2, -2 oxidation. For oxygen it is reduction. So this is known as the combination reactions. Whereas the next second type of the reaction is the decomposition reaction. Decomposition is just the opposite of combination reactions. अब इसमें क्या करते हैं बेटा, एक कंपाउंड ब्रेक करता है 2 और मोर कंपाउंड्स में. अब याद क्या रखना है आपको, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इज इन द एलिमेंटल फॉर्म. अगर ये है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी. अगर ये कंडीशन नहीं है देन इट विल नॉट बी द redox reaction, decomposition reaction for the redox reaction. For example, you see over here hydrogen is in +1 oxidation state, oxygen is -2. Heat करेंगे, hydrogen 0, 0. You are seeing from +1 to 0 reduction, -2 to 0 oxidation. Similarly over here you see KClO3. If you calculate the oxidation state of chlorine, it is +5, while for oxygen it is -2. Over here you see for Cl it comes out to be -1, oxygen 0. Similarly NaH, sodium +1, hydrogen -1, 0, 0. Similarly over here ammonia -3, hydrogen is in +1 oxidation state, 0, 0. So they are in the elemental form. At least one of the products should be in the elemental form. I am writing a reaction to you. You identify it whether it is a redox reaction or not. Suppose CaCO3, so calcium oxide and carbon dioxide. If you see the change in the oxidation number, it will be for calcium +2, carbon is in +4 oxidation state, while oxygen is in -2 oxidation state. Here you see calcium +2, oxygen -2. Here also carbon +4 and oxygen -2. You see all are having the same oxidation state, so it is not a redox reaction. And also here none of the product is in the elemental state, so not a redox reaction. See the next one.
थर्ड वन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट में बेटा कुछ नहीं होता है, x प्लस वाई जेड में से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है. यू सी ओवर हेयर y इज liberated out, x is displacing y, so xz plus y. Now it is of two types, either the metal displaces in a reaction or with a non-metal this reaction takes place. If metal displacement reactions is taking place over here, a metal in the compound is displaced by some other metal taken in the elemental form. मतलब कि एक जो मेटल होगा वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, लेकिन दूसरा वाला तो कंपाउंड के फॉर्म में होगा. ये एक एलिमेंट दूसरे वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है एंड द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. सी ओवर हेयर इन CuSO4 if you calculate the oxidation state of each element, it comes out to be over here copper is in +2, sulfur is +6, while oxygen is in -2, zinc 0. over here कॉपर कम्स आउट टू बी 0, एलिमेंटल स्टेट में है. जिंक का आप निकालोगे बेटा, इट कम्स आउट टू बी +2, सल्फर इज इन +6, -2. सो व्हाट इज द चेंज? +2 to 0 ओवर हेयर. कॉपर का चेंज आ रहा है +2 से 0 मीन्स रिडक्शन. ओवर हेयर 0 to +2 ऑक्सीडेशन. सो it is also displacing and the redox reaction is taking place. Similarly over here you see, if you calculate the oxidation state of vanadium, it comes out to be +5, oxygen -2, calcium is in 0 oxidation state. Vanadium 0, calcium +2, -2. Again you see +5 to 0 means reduction, and over here for calcium it is from 0 to +2 oxidation. Similarly over here you see chromium, if you calculate the oxidation state, it comes out to be +3, -2, aluminium in 0. Here chromium will be in 0 oxidation state, aluminium +3, oxygen -2. तो इस तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं कि जो है हमारा मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. Here you are seeing the reducing metals have greater tendency to lose the electrons as compared to the metals being reduced. Okay, so now the next one, non-metal displacement reactions. यहाँ पे बेटा क्या होता है कि नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस्ड होता है अपने कंपाउंड से आइदर बाय द मेटल और द नॉन मेटल. और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब अगर नॉन मेटल से रिएक्शन हो रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं. यू सी ओवर हेयर सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर. अब सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेगा और इट इज़ फॉर्मिंग NaOH एंड H2. इफ़ यू सी ओवर हेयर द स्टेट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 0, ओवर हेयर इट विल बी 2. सो 0 ओवर हेयर हाइड्रोजन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2. यहाँ पे सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, +1 एंड हेयर 0. तो आप देख सकते हो बेटा सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. एंड आइदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन इज प्रोड्यूस्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. सिमिलरली ओवर हेयर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से थोड़ी कम हो जाती है, तो ये स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंटल स्टेट 0 है, यहाँ पे आपका आ जाएगा +1, -2. ओवर हेयर अगेन +2, ऑक्सीजन की निकालोगे -2, हाइड्रोजन +1 एंड हेयर 0. सो यू आर सीइंग ओवर हेयर इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन. अब आयरन की रिएक्टिविटी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है, तो ये जो है एसिड से रिएक्ट करता है और ये बना रहा है FeCl2. तो यहाँ पे आप देखोगे आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 में आ जाएगा. HCl में क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे भी -1 में है, तो कोई चेंज नहीं हुआ. हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में है, यहाँ 0 है. सो इट इज द रिडक्शन, वाइल हेयर इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन. तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास स्टेट पे. तो रिएक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एक्वस एसिड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी. एज इन दिस केस यू आर सीइंग सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, देन मैग्नीशियम, देन आयरन. और अगर गोल्ड और सिल्वर की बात कर लो तो उनकी रिएक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है.
सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा अगर रिएक्टिविटी की बात करते हो नॉन मेटल्स की, तो जो ऑर्डर होता है रिएक्टिव डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस का, वो क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उसी के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। Fluorine is very reactive and it displaces oxygen from water. You see this reaction, F2 plus 2 times H2O gives HF and O2. अगर आप इसमें भी अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन +1 -2, लेकिन यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1 एंड ऑक्सीजन इज इन जीरो स्टेट। तो आप देख सकते हो कि 0 से -1 क्या हो रहा है? रिडक्शन, वेयर एज फ्रॉम -2 to 0 ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सली पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और यही जो प्रॉपर्टी होती है रिएक्टिविटी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ये हम यूज करते हैं लैब्स में फॉर द लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट में क्या होता है कि क्लोरीन जो है, अगर हम लेते हैं ब्रोमीन का सोल्यूशन, तो ब्रोमीन के सोल्यूशन में क्लोरीन अगर हम उसको पुट कर देते हैं तो ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है एंड द ब्रोमीन इज लिबरेटेड आउट एंड द ऑरेंज और द ब्राउन कलर इन CCl4 इज ऑब्टेन्ड। दिस इज कॉल्ड एज द लेयर टेस्ट। सिमिलरली Cl2 गैस आयोडाइड को रिप्लेस कर देगी, 2 times Cl माइनस एक्वा साइन आ जाएंगे एंड I2 इज लिबरेटेड आउट एंड वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन्ड इन CCl4 layer. So these reactions form the basis of identifying the bromide and the iodide ions in the laboratory. This is known as the layer test. अब ये जो प्रॉपर्टी होती है हेलोजन डिस्प्लेसमेंट की, ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है फॉर द रिकवरी ऑफ द हेलोजन्स फ्रॉम देयर हेलाइट्स। और हेलाइट से हम रिकवर करने के लिए क्या यूज करते हैं? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो आयंस होते हैं, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, वो रिस्पेक्टिवली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम F- को यानी कि फ्लोराइड आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम रिकवर भी नहीं कर सकते टू फॉर्म F2। क्यों? क्योंकि वो F2 जो है वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कोई उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नाउ वी विल डिस्कस द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा, और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें कंडीशन क्या है कि वो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब भी रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करेगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि वो उस वाली कंडीशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ट्रांसफर होगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट होगा। एज यू सी ओवर हियर, H2O2 is converting to H2O plus O2. Over here, in hydrogen peroxide, oxygen is in -1 oxidation state, whereas in H2 is in +1 oxidation state, क्योंकि peroxides में ऑक्सीजन जो है वो -1 oxidation state में होता है। H2O में +1 और ऑक्सीजन -2, while O2 is in 0 oxidation state. तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और -1 से ही 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब दिस इज -1 to 0, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, while from -1 to -2 reduction. The same species is oxidized while the other is reduced. See the other example. Here, phosphorus, sulfur and chlorine also undergoes disproportionation reaction in the basic medium. This is a balanced equation. अब हमें बैलेंसिंग को तो देखना ही है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जो P4 है हमारे पास, P4 is converting to PH3 as well as P4 is converting to H2PO2 minus. अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा। फॉस्फोरस इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हेयर, और यहाँ पे अगर हम PH3 में निकालते हैं तो -3, यहाँ पे 0 एंड ओवर हेयर H2PO2 माइनस में अगर फॉस्फोरस की आप निकालोगे इट विल बी +1.
So here from 0 to -3 reduction is taking place. From 0 to +1 oxidation is taking place. So in the same reaction, the same species is undergoing oxidation while the same is undergoing reduction. So it is a disproportionation reaction. This is reduction while over here it is oxidation. See the other example. S8 is converting to S2 minus. Here also S8 is converting to S2O3 2 minus. If you see the change in oxidation state over here it is in 0 oxidation state, while over in sulfur it is in -2 oxidation state. Here 0 and S2O3 2 minus means sulfur is in +2 oxidation state. So 0 to -2 means reduction, while 0 to +2 means oxidation. So the same species is undergoing reduction as well as the same species is undergoing oxidation. So such reactions are known as disproportionation reaction. The next example, see over here, chlorine, bromine and iodine also reacts with cold and dilute alkaline medium. अब Cl2 की रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं बेटा तो ये कन्वर्ट होता है Cl- में और ClO- में. दोनों में आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बेटा. तो Cl2 इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl- में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ClO- में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो आप क्या कह सकते हो कि 0 से -1 रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर हेयर, रिडक्शन, while from 0 to +1 oxidation is taking place. Over here reduction, over here oxidation. Similarly you see over here Br2 is converting to Br minus, -1 to 0, reduction. Similarly 0 से +1 again oxidation. Over here also I2 is converting to I minus, -1 0, reduction, and over here IO minus +1, so over here it is oxidation. Fluorine does not show the disproportionation reaction because it is a most electronegative atom. Therefore it cannot exhibit any positive oxidation state. तो जो फ्लोरीन की रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है बेटा. Over here you see fluorine is in 0 oxidation state. It gets converted to -1, and over here OF2 in this it is converting to -2 oxidation state. So fluorine is going to -1. Here fluorine is converting to 0 से -1 और 0 से -2. तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. See this question. Which of the following species do not show disproportionation reaction and why? अब हम ये कैसे पता लगाएंगे बेटा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा. देखो बेटा, कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बताया था कि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए. यानी कि अगर वो अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. तो इसका मतलब वो जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. आपके पास ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिया हुआ है. तो ClO- में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा. सो इट कम्स आउट टू बी ओवर हेयर, आई कैन राइट इट. इन ClO- it is in +1 oxidation state, while in ClO2- it is in +3 oxidation state. In ClO3- it is in +5 oxidation state, while in ClO4- it is in +7 oxidation state. Means in ClO4- it is in +7 oxidation state and it is the highest oxidation state. Means this compound will not undergo disproportionation reaction. तो ये ऑक्सोअनाइंस होते हैं बेटा. तो ये वाले जो ऑक्सोनाइंस हैं इसमें से ClO4- जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. बाकी बेटा जो शो करते हैं वो इस तरीके से शो करते हैं. जैसे ClO- है, ये कन्वर्ट कर देता है Cl-
और ClO3 माइनस में बैलेंस करोगे इक्वेशन 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऑक्सीडेशन नंबर आप सबका निकालोगे तो यहाँ पे आता है +1, इट इज़ इन -1, ओवर हेयर इट इज़ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा, ClO2 माइनस ये कन्वर्ट होता है बेटा ClO3 माइनस एंड 2 टाइम्स Cl माइनस। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ पे, सो इट कम्स आउट टू बी +3, ओवर हेयर इट इज़ +5 एंड हेयर इट इज़ -1। बैलेंस करो इक्वेशन को तो ये आ जाएगा बेटा 6 टाइम्स, ओवर हेयर इट कम्स आउट टू बी 4 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। नाउ वन मोर, द ClO3 माइनस विल रिएक्ट एज ClO3 माइनस will form ClO4 माइनस प्लस Br माइनस। बैलेंस करें इक्वेशन को, इट विल बी 4 टाइम्स 3 टाइम्स Cl माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बेटा, इसमें क्लोरीन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवर हेयर इट इज़ इन +7 और ये -1। तो आप ये देख सकते हो बेटा, ये सब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आ गया, लेकिन ये +7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं शो करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वन मोर क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप देखो बेटा, N2 + O2 फॉर्म्स 2 टाइम्स NO। ऑक्सीजन है यहाँ पे, दोनों एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड और NO2 में कन्वर्ट हो रहा है ½ टाइम्स O2, तो यानी कि एक कंपाउंड डिकम्पोज कर रहा है, सो इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में क्या ट्रिक बताई थी कि वो अपने ऑक्सीजन, हेलोजन या H2 में ज़रूर निकलेगा। ओवर हेयर ऑल्सो NaH रिएक्ट्स विद H2O, इट फॉर्म्स NaOH एंड H2। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेस हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट reaction. And in the last one you see NO2 is converting to NO2 minus and NO2 is converting to NO3 minus, so this is a disproportionation reaction. Simple one. Now there are the two types of reactions are also there. Intermolecular redox reaction, ये बेटा बिल्कुल कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो, फर्स्ट वन ओवर हेयर इन इफ यू फाइंड आउट KI जो है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन, ओवर हेयर इट इज इन -1 0, सो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे KiO3 में आयोडाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन I2 इट इज़ इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +5 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अदर रिएक्शंस आर ऑल्सो देयर, Fe is converting to FeOH, over here it is oxidation, यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0, N2H4 it is undergoing reduction. NO3 reacts with H2S to form NH4 plus and HSO4 minus. NO3 minus +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे ये किस में हो रहा है बेटा? ओवर हेयर नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन H2S sulfur is in -2 oxidation state, and in HSO4 it is in +6 oxidation state. So +5 to -3 reduction is taking place and -2 to +6 oxidation is taking place. Over here reduction is taking place, and from H2S to this, so oxidation. So likewise this is the simple example of intermolecular redox reaction. Now we have intramolecular redox reaction. Over here in an atom, one atom of a molecule is oxidized while the other atom of the molecule is reduced. See over here,
in Mn2O7, manganese is present in +7 oxidation state. It is converting to +4 oxidation state. So from +7 to +4, it is undergoing reduction. While if you see the oxygen, here it is in -2, here it is in 0. So from -2 it is converting to 0, so it is oxidation. Similarly, over here in KClO3, here the chlorine is converting to Cl minus while oxygen is converting to O2. Chlorine is in +5 oxidation state. Here it is in -1. So it will undergo reduction. While over here it is undergoing oxidation. Oxygen is undergoing oxidation. Similarly, in this example you can see NO2 minus is undergoing conversion to NO. So nitrogen over here it is in +3 oxidation state and here it is in 0. So it is undergoing reduction. But in NH4 plus, here it is in -3 oxidation state and here it is in 0. So over here it is undergoing oxidation. तो एक ही मॉलिक्यूल में जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, एटम्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं. सच रिएक्शंस आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस.